A very good morning to everyone. Today I'm going to start your study of English. Today I'm going to start your English practice from Honeycomb textbook. And so that I will take this chapter from your Honeycomb book, and the name of this chapter is 3 questions. So let's start. What is the theme of this question? Which type of characterizations writer use in this story, and what is the motive and what is the theme of this story? Actually, 3 question story is very interesting story. In this story, one king who was very restless to find the correct answer of the questions, whatever he had contained in his mind. So the story takes the form of the probable and concerns a king who want to find the answers to what he consider the 3 most important question in the life. For that he consult with many types of the person, just like you can say that the wise man, the promising a large sum to everyone, and he really want to promising a large sum to anyone who could answer those questions, but their answers was too diverse, and he never ever satisfied from the peoples and the advice of the peoples, from the reply of the people, and you can say that the answer of the people also. He was very restless. Why he was very restless? Because he was unable to find the correct answers from his public, so that he was very concernful and unsatisfied. Now I have to discuss about the story, and what is the motive of this story, and what are 3 question in this story. ऐसे कौन से 3 questions थे जो इस स्टोरी में जो राइटर है उसने डिस्कस किए हैं. Why did the king want to know the answers 3 questions? आंसर क्यों चाहता था? जो किंग था वो अपने 3 सवालों के जवाब क्यों चाहता था, और उसने किस तरीके से अपने 3 प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए उत्सुकता दिखाई. First, he messengers were sent throughout the kingdom, and second, in the answer to 2 questions, and who advised the people say would important to the king, and what suggestions were made in answer to the 3rd question, did the wise man win the rewards. तो आगे हम देखेंगे किस किस तरीके के सर्कमस्टांसेस हुए इस स्टोरी में, राजा के साथ क्या कोइंसिडेंस हुए, और फाइनली क्या राजा को उसके 3 प्रश्नों के जवाब मिले या नहीं मिले. ऑलराइट. एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था राजा कि उसको उसके सवालों के जवाब मिले. तो दीज 3 थिंग्स एंड दीज 3 क्वेश्चंस एक्चुअली व्हाट इज़. सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको ऑनलाइन सेशन में बताया था. विच पीपल शुड ही लिसन टू? किसको सुनना चाहिए, किन लोगों की बातों को समझना चाहिए, किनको सुनना चाहिए, किनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और हमें किस काम को कब करना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम द लाइफ. द किंग देयरफॉर सेंट द मैसेंजर throughout his kingdom, promising a large sum of money to everyone who would answer these types of 3 questions. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो 3 प्रश्न थे, ये जो 3 questions थे, इनके लिए वो क्यों उत्सुक था, और ये 3 questions किस तरीके से थे, किस तरीके से रिप्रेजेंट हुए इस चैप्टर में, वो अभी हम आपको 1 by 1 करके बताएंगे. तो 3 questions जो चैप्टर है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है. The thought come to certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा एक दिन सोचता है कि अगर मुझे ये 3 सवालों के जवाब मुझे लाइफ में मिल जाएं तो मुझसे कभी भी कोई भी भूल नहीं होगी, और मैं हमेशा मुझे विजयी प्राप्त होगी हर काम में. तो इसलिए सोचता है कि जो 3 प्रश्न मेरे दिमाग में आए हैं उनके सवालों के जवाब मुझे पाना ही पाना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को आई वांट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन दिस अर्थ, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति बनना चाहता था. तो इसके लिए उसको उसके राजा के दिमाग में ये बात आई कि 3 क्वेश्चंस के जवाब अगर मुझे मिल जाएं तो मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, और मैं हमेशा विजयी रहूँगा और हर चीज़ में मुझे सफलता मिलेगी.
नाउ इफ़ यू न्यू 3 क्वेश्चंस, उसने कहा कि अगर मैं इन 3 क्वेश्चंस को जान लूँ तो व्हाट इज़ द राइट, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो 3 क्वेश्चंस कौन थे। जैसे मैंने आपको बताया कि दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 क्वेश्चंस ये थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, हमें किस काम को कब शुरू करना चाहिए। व्हाट इज़ द राइट टाइम, कौन सा समय सही समय है किसी भी काम की शुरुआत के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच पीपल शुड बी लिसन टू, हमें किसकी बात सुननी चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्राणी हैं जिनकी बातें हमें सुननी चाहिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है हमारे लिए करने के लिए वो क्या है। अगर वो हमें पता चल जाए, ये 3 चीज़ें हमें पता चल जाए, तो मुझसे कभी भी असफलता का स्वाद में कभी नहीं चखूँगा और हमेशा ही सफल रहूँगा। सो for that the king was very concernful about these types of the questions. तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम 3 क्वेश्चन पड़ा, क्योंकि राजा के दिमाग में यही 3 क्वेश्चंस आए थे जिनके जवाब पूरे चैप्टर में उसने 1 बाय 1 सबसे ढूंढने की कोशिश की और सबसे फाइंड आउट करने की कोशिश की, और एट लास्ट में क्या होता है, क्या उसे जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो तो हम आगे क्लाइमैक्स में देखेंगे। नाउ द किंग देयरफॉर सेंट अ मैसेंजर, इसके लिए किंग ने अपने मैसेंजर यानी अपने संदेश वाहक को भेजा लोगों के पास, अपने किंगडम में भेजा, अपने राज्य में भेजा। किस लिए भेजा? प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और उसने कहा जिसने भी मुझे इन सवालों के जवाब दिए, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, उसको मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिसिंग किया अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि वो उस व्यक्ति को बहुत सारा पैसा देगा। कौन देगा? राजा देगा। किस व्यक्ति को देगा? जो इसके सवालों के जवाब दे देंगे। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी लोगों ने अपने प्रश्नों के जवाब, वो जो राजा के दिमाग में जो प्रश्न थे उनके जवाब भिन्न भिन्न तरीके से दिए। सबके जवाब लगभग काफ़ी डिफरेंट थे। Many wise men come to the king, और उन्होंने अपने जवाब प्रेजेंट किए। इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जब पहले क्वेश्चन की रिप्लाई की बारी आई तो सम सेड, कुछ लोगों ने कहा किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि किंग को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपनी एक समय सारणी बनानी चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो, एंड देन फॉलो इट्स स्ट्रिक्टली, और इसे फॉलो भी करना चाहिए स्ट्रिक्टनेस के साथ। Only in this way they said could he do everything it's a proper time, तभी वो किसी काम को सही समय में कर पाएंगे अगर वो किसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट किंग वांट टू मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो दिस टाइप ऑफ टाइम टेबल रेगुलरली। तो कुछ लोगों ने तो ऐसा जवाब दिया। अदर्स सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ये तो बिल्कुल ही असंभव चीज़ है कि हम किस काम को कब करेंगे और इसका प्रेडिक्शन पहले से ही कर देना, तो ये तो एक असंभव चीज़ है। हम किसी काम को किस समय करें, ये तो एक भविष्यवाणी हो गई, और हम कैसे पहले से एसेस कर ले कि हम इस काम को इस टाइम कर पाएंगे। तो कुछ लोगों ने इसे टोटली इस चीज़ को एकदम इसके अगेंस्ट बोला कि नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है और इसका तो कोई प्रॉपर टाइम ही नहीं है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। द किंग शुड नोटिस, किंग ने नोटिस किया ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द दैट टाइम। तो राजा को तुरंत लगा कि ये जो लोग हैं इनकी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है कि ये लोग जो हैं वो केवल बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए और केवल हास्य की एक वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं। वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, yet others said the king needed a council of a wise man who would help him at the proper time. तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, बुद्धिमान व्यक्ति का एक परिषद, अ ग्रुप ऑफ अ वाइस मैन। तो रियली राजा जो किंग हैं उनको नीड होगी, मतलब द किंग हैज़ टू नीडेड द काउंसिल ऑफ द वाइस मैन। ये कुछ लोगों की एडवाइस थी कि राजा आप काउंसिल बुला लीजिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका पूरा ग्रुप अपने दरबार में रखिए, तो वो आपको सही बताएंगे कि आपको कौन सा काम कब करना चाहिए, किसकी हेल्प लेना चाहिए और किस काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम क्या है।
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि राजा साहब किसी एक व्यक्ति के बस के बाहर है, असंभव है, इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना कि कौन सा काम कब करना चाहिए। तो किसी और बहुत सारे व्यक्तियों की हेल्प के बिना इस काम को करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि in order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future, क्योंकि हमको इस बात को जानने के लिए अपने भविष्य में जाना पड़ेगा। तो भविष्य में जाना पड़ेगा तो हमें इसके लिए तो किसी मैजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी जादूगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप मैजिशियंस को की हेल्प ले लीजिए और वो आपको बता सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा समय सही रहेगा आपके लिए काम करने के लिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल मैजिशियन ही ऐसा काम कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन। अब जो किंग थे वो मैजिशियंस के पास गए, जादूगर के पास गए। इन देयर आंसर्स टू सेकेंड क्वेश्चन, अब बारी आई उनके सेकेंड क्वेश्चन के जवाब की। लोगों की मतलब जनता से जो उनको सेकेंड क्वेश्चन का जवाब मिलना था, अब उसकी बारी आई। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि आपका इधर ये जो येलो पार्ट है इसमें आपकी वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, एंड ये जो वर्ड मीनिंग है ये इंग्लिश टू इंग्लिश हैं। तो यू शुड बी कॉपी these types of word meaning into the fair copy, okay, in fair notebook of English textbook. Let's start. In their answers to second question, some said the pupil must necessary to king one is a councils. तो कुछ लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के जवाब के लिए कहा कि आपको काउंसलर्स को बुला लेना चाहिए। अदर सेज द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि आपको पादरी के पास जाना चाहिए, जो चर्च में पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर्स के पास जाइए और डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे। एंड येट अदर सैड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स जो है वो आपकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं और वो आपको सही सलाह देंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स की बारी आई। तो थर्ड क्वेश्चन में जो रिप्लाई आया लोगों की तरफ से राजा के पास वो ये था, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं फाइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लाइफ में करने के लिए, येट अदर ने बोला कि नहीं पूजा पाठ और ईश्वर की उपासना करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही तो क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है लाइफ का जो इंसान को करना चाहिए। तो मैनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस कम टू द किंग। द फर्स्ट इज, जैसा मैंने बताया, व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू बिगिन समथिंग। द सेकेंड इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड द थर्ड इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब इसमें भी क्या हुआ कि भिन्न भिन्न तरीके के सारे जवाब मिल रहे थे। राजा इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं था, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, एंड ही वाज टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस मैटर बिकॉज ही हैज़ नो एनी फाइनेस्ट रिप्लाई। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड्स, अब जब किंग सेटिस्फाइड ही नहीं था तो उसने किसी को कोई रिवार्ड, कोई पुरस्कार, जैसा उसने डिसाइड किया था कि वो खूब सारे मनी देगा, खूब सारे पैसे देगा जो उसके प्रश्नों के जवाब देंगे, बट फाइनली he didn't find the answers from the peoples of his kingdom, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड था और उसने किसी को कोई भी पुरस्कार, रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कृत करना, किसी को पुरस्कृत नहीं किया। इंस्टेंट, बल्कि इसके बजाय उसने ये डिसाइड किया टू सी, खोजना, किसको खोजना, एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, किसी एक हर्मिट को, जो सन्यासी होते हैं, जो अपने सांसारिक मोह को, अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर जंगलों में रहते हैं, उसको ढूंढने की राजा ने कोशिश की कि मैं एक हर्मिट के पास जाऊंगा, शायद वही हर्मिट मेरे सवालों के जवाब दे, क्योंकि हर्मिट जो होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं और संसार के मोह माया के परे होते हैं। Who was widely known for his wisdom, और उनके पास बुद्धिमत्ता जो होती है ना वो मतलब अपार होती है। So he has no compare to hermit, एक हर्मिट से कोई भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज ही वॉज द बियॉन्ड ऑफ द कंपैरिजन। नाउ द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, अब हर्मिट जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं, एक जंगल में रहते हैं, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी भी नहीं छोड़ते। ही सॉ
नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन द ऑर्डिनरी क्लोथ। उनको हर आदमी नहीं ढूंढ सकता और हर आदमी उनका पता भी नहीं लगा सकता। वाई? बिकॉज वो इतने साधारण वेशभूषा में रहते हैं कि उनका पता लगाना असंभव होता है। बिफोर ही रीच, जब तक उनको ढूंढा ना जाए, जब तक उनको खोजा ना जाए, तब तक कोई भी हर्मिट को नहीं पा सकता। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट जैसे ही राजा को दिखाई दिए, राजा ने अपने घोड़े को अपनी जो सेना थी उनके पास, अपने जो सैनिक थे उनके पास छोड़ दिया और हर्मिट के पास वो अकेले गए, घोड़े को त्याग कर पैदल गए। एज द किंग कम टू नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा हर्मिट के पास पहुँचे, हर्मिट की कुटिया के पास पहुँचे, हट मतलब होता है झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सॉ, उन्होंने देखा हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, कि जो हर्मिट है वो अपनी जो झोपड़ी के बाहर खुदाई कर रहे हैं। डिग मतलब खोदना, फावड़े से या कुल्हाड़ी से अपने घर के सामने की ज़मीन को खोद रहे हैं। इन फ्रंट मतलब अपने घर के, इन फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस या इन फ्रंट ऑफ हिज हट का मतलब अपनी झोपड़ी के सामने कुछ खोद रहे थे हर्मिट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने राजा को धन्यवाद कहा, ग्रीटेड किया, सम्मान दिया और कंटिन्यूसली वो फिर से डिगिंग करने लगे, फिर से खोदने लगे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो जो हर्मिट थे वो बहुत बूढ़े थे और बहुत ही कमज़ोर थे। एंड ही वर्कड, ही ब्रीथ हैविली, बार बार वो फावड़े से कुल्हाड़ी से ज़मीन को खोद रहे थे और हाँफ रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज सो वीक। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, किंग हर्मिट के पास गए और उन्होंने पूछा एक्चुअली, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 सवालों के जवाबों की प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किस काम को कब शुरू करूँ और कौन सा समय होता है किसी काम को शुरू करने के लिए, कौन सा सही समय होता है, प्लीज़ टेल मी। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, हमें भविष्य में या हमें अपनी लाइफ में कैसे कैसी पीपल्स की ज़रूरत है, कैसे पीपल्स की गैदरिंग मुझे रखनी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन कौन से ज़रूरी काम हैं। अफेयर्स का मतलब होता है थिंग्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स या इंपॉर्टेंट बिजनेस, यू कैन से दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, मतलब कौन कौन से ज़रूरी काम है फॉर डूइंग इन हिज लाइफ, मतलब उसको अपने जीवन में करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट काम की ज़रूरत है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज़ सेलेक्ट दैट। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट टू डिगिंग, और वो फिर से डिगिंग करने लगे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे हर्मिट, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपनी जगह डिग करने दीजिए, मुझे अपनी जगह खुदाई करने दीजिए और आप कहीं जाकर आराम कर लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सो टायर्ड, और मुझे अपना स्पैट दे दीजिए। स्पैट मतलब होता है फावड़ा, मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए और आप कहीं छाँव में जाकर बैठ जाइए, बिकॉज नाउ यू आर सो टायर्ड। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग्स हिज स्पैट, उसने अपना फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जाके किसी ग्राउंड में बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डिग, और जैसे ही किंग डिग करने लगे, 2 बेड्स, 2 बार उन्होंने डिग किया। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और फिर वो अपने क्वेश्चंस पूछने लगे कि आप प्लीज़ मुझे बता तो दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब तो दे दीजिए हर्मिट। द हर्मिट गेव नो आंसर्स, लेकिन हर्मिट ने तब भी कोई रिप्लाई नहीं किया, बट स्टूड अप, और वहाँ पर खड़ा हो गया, एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड और स्पैट एंड सैड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और खड़ा होकर बोलने लगा हर्मिट कि आप मुझे मेरा फावड़ा दे दीजिए और अब आप आराम कर लीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैट एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन किंग ने उनका फावड़ा उनको वापस नहीं किया और कहा नो, आई हैव नो नीड टू रेस्ट बिकॉज यू आर सो टायर्ड,
and from many times you have to try to dig this ground, so you are so tired than me, so you just tried here and you just sit down. I have to do this, ऐसा उसने रिप्लाई किया. 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया. देन अनदर, दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा भी बीतता जा रहा था. एंड द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. अब जो सूरज था वो भी जो पेड़ थे उनके बीच में जाकर छुप गया था. And at the last, king stuck the spat into the ground and said, I come to you, wise man, for and answer my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running and said to the hermit. फिर जब जैसे ही 2-3 घंटे बीतते गए, सूरज जो था वो नीचे आ गया था और पेड़ों पे छुप गया था. तो लास्ट में किंग बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी हो रहे थे और बहुत थक भी गए थे और बहुत ही चिड़चिड़ा कर उन्होंने हर्मिट से फिर से क्वेश्चन किया कि प्लीज़ आप मुझे बताइए मेरे 3 क्वेश्चंस के जवाब. आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपके पास इतनी दूर से आया हूँ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं. आप मुझे फाइनली बता तो दीजिए कि क्या मेरे 3 सवालों के जवाब आपके पास हैं. अगर हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो मुझे क्लियर बता दीजिए कि दैट आई हैव नो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस. तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा, एटलीस्ट मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं करूंगा. जैसे ही उसने ये बात हर्मिट से कही, हेयर कम समवन रनिंग, तब तक दौड़ता हुआ एक व्यक्ति वहाँ पर आया. सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि कोई व्यक्ति है जो इधर आ रहा है. द किंग टर्न राउंड, किंग जो थे वो चारों तरफ देखने लगे, घूमने लगे. एंड सेट अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम, और एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, जिसके फेस पे दाढ़ी हो. तो अ बियर्डेड मैन, जो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो दौड़ते हुए आ रहा था उन लोगों की तरफ. किसकी तरफ? राजा और हर्मिट की तरफ. His hand were pressed against his stomach. वो अपने हाथ को, अपने पेट को अपने हाथ से दबाए हुए था. From which, जहाँ से ब्लड गिर रहा था, was flowing, और बराबर लगातार गिर रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा के पास आया, वो ज़मीन पे फेंट मतलब बेहोश होकर गिर गया. फेंट मतलब होता है मूर्छित होना या बेहोश होकर. फेल into the ground यानी ग्राउंड में गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. हर्मिट ने और किंग ने उस व्यक्ति के जख्मों को एक कपड़े से पोंछा, और वो बहुत ज़्यादा जख्मी था और उसके स्टमक में काफ़ी वुंड्स थे, बहुत जख्म थे, और उन जख्मों को भी पानी से पोंछा. द किंग वॉश्ड, किंग ने उसके जख्मों को धोया और कवर्ड किया विद हिज हैंकरचीफ, अपने हैंकी से, अपने रुमाल से उन जख्मों को पट्टी बांधी, मतलब मरहम कर दिया, उसको ड्रेस्ट कर दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड, फिर किंग ने फिर उसकी ड्रेसिंग की, दोबारा ड्रेसिंग किया. द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, वुंड फिर भी, वुंड्स में मतलब जख्मों में से फिर भी खून गिर रहा था, लेकिन लास्ट में जख्मों से खून गिरना बंद हो गया. द किंग फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब जो था वो, जो मैन था वो काफ़ी बेटर फील कर रहा था. आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए भी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, किंग एक सही फ्रेश पानी लाए और दे दिया उनको पीने के लिए. बाय दिस टाइम, इस समय जो सूरज था वो पूरी तरीके से अस्त हो चुका था. एंड जो हवा थी उसमें भी ठंडक थी और हवा भी फ्लो कर रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, किंग ने हर्मिट की हेल्प लेते हुए उस जख्मी आदमी को हर्मिट की कुटिया तक ले गए और उसको वहाँ हर्मिट के बेड पर लिटा दिया, उस जख्मी व्यक्ति को. किसने? राजा ने और हर्मिट ने. द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस आदमी ने, उस जख्मी व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया. एंड ले क्वाइट, और लेट गया शांति से. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. अब जो राजा था वो बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत थक गया था, क्योंकि उसने काफ़ी चल भी लिया था और काफ़ी उसने काम भी किया था. जो मतलब हर्मिट का जो भी काम उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था और जिसने ले लिया था, वो काम भी वो करने लगा था.
अब जो राजा था वो भी ज़मीन पर लेट गया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर मतलब ज़मीन पे लेट गया था, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट और पूरी रात वो सो गया। When he awoke, जैसे ही वो उठा, it was a several minutes before ही उसने देखा, could remember उसको याद आया, where he was और who the strange bearded man lying on the bed was। फिर उसको याद आया कि वो कहाँ पर है और वो who the was और who the strange bearded man और वो bearded man कहाँ गया। Forgive me, मुझे माफ़ कीजिए, said the bearded man। फिर बियर्ड मैन को देखने के लिए राजा उस हट में गया। तब तक देखा बियर्ड मैन उठ गया और बियर्ड मैन को याद आया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, मतलब बियर्ड मैन सब कुछ भूल गया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो सो गया था। तो जैसे ही वो अपनी नींद से उठा तो उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत ही वीक आवाज़ में, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उसने राजा से माफ़ी मांगी। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा कि किंग वॉज अवेक, कि किंग भी जग गए हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। हैव नथिंग टू फॉरगिव, तो तुमने ऐसा क्या किया है जो मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। सैड द किंग, ये राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आई नो यू। जो घायल आदमी था उसने कहा, राजा आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम योर एनिमी, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका एनिमी हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जो आपसे बदला लेने, रिवेंज मतलब बदला लेना, जो आपसे बदला लेने यहाँ पर आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, लेकिन क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। एंड नहीं, आपने मेरे भाई की हत्या नहीं कर दी थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मजबूर कर दिया था कि मेरा जो भाई है वो डेथ को मतलब एक्सेप्ट कर ले। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को आपने छीन लिया था, मतलब मेरे भाई को भी मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को भी छीनने का प्रयास किया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, इसलिए मैं आपके पास आ रहा था आपको मारने, पर मैंने हर्मिट को देखा। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और फिर मैंने देखा कि मैं आपको मारूंगा। हम लोग बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे थे कि आप अपने घर लौट कर आओ, लेकिन आप अपने घर लौट कर आए नहीं, आप तो इन हर्मिट से मिलने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही आपको हर्मिट के पास जाकर वहीं पे ही मार देंगे। बट द डे पास, जैसे ही दिन बीता, यू डिड नॉट रिटर्न, आप घर आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, और मैं बहुत देर तक एक छुपी मतलब एक सीक्रेट जगह अपने आप को छुपाए बैठा रहा और आपका इंतज़ार कर रहा था। एंड आई कम अपॉन यू बॉडीगार्ड, और जैसे ही आप अपने बॉडीगार्ड के साथ आए, मैं भी वहाँ पर आ गया और एक स्थान पे जाके छुप गया। लेकिन जैसे ही मैं आपके पास आने लगा, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया। आई कम अपॉन योर, जैसे ही मैं आपके पास आने लगा, योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज मी, आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप मतलब होता है बच के निकल जाना, तो मैं बचता हुआ आपके पास आया। एंड आई शुड हैव डाइड, और मैं मर जाता अगर आप मुझे ना बचाते। आपने मुझे ड्रेसिंग की, मेरे ज़ख्मों को सही किया, मुझे फर्स्ट एड दिया, मुझे मरने से बचाया, मेरी रक्षा की, मेरी सुरक्षा की, मेरी केयर की। आई विश टू किल यू, और मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा लिया, मुझे जीवन दान दे दिया। नाउ इफ़ आई लिव, और आज मुझे जो जीवन मिला है वो सिर्फ आपकी वजह से मिला है। आई विल सर्व यू, और अब मैं आपको बचा रहा हूँ, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अब मैं आपका सबसे आज्ञाकारी और सबसे विश्वसनीय सर्वेंट बनकर पूरी ज़िंदगी आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा और आपका हमेशा वफादार रहूँगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश हुए। टू हैव अ मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, और उन्होंने अपनी एनिमी की जो शत्रुता थी उसको रिमूव किया और बहुत सेटिस्फाइड हो गए और बहुत शांति मिली कि उन्होंने किसी की हेल्प की। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड, और अब जो उनके एनिमी थे वो उनके फ्रेंड बन गया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने ना केवल उसे माफ़ किया बल्कि अपने सर्वेंट्स को भेजा कि तुम एक प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के अंडर में उनको रखो, मतलब उस बियर्डेड मैन को, जो जख्मी व्यक्ति था, उसको मतलब एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ
और ही प्रॉमिस टू गिव बैक टू हिज मनी एंड प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि ठीक है, तुम जिस लिए मुझे अपना शत्रु मानते थे मैं उस वजह को ही ख़त्म कर दूंगा। मैं तुम्हारा भाई तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, अब उस वुंडेड मैन को किंग ने छोड़ दिया। एंड द किंग वेंट आउट द हट एंड लुक्ड अराउंड द हर्मिट, और फिर वो चारों तरफ देखते हुए हर्मिट के पास पहुँचे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस अगेन टू गेट, जैसे ही वो जाते उससे पहले उनको फिर से अपने सारे क्वेश्चंस याद आ गए, और फिर से उन्होंने हर्मिट से कहा कि आपने अभी तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। और एट लास्ट में जो किंग थे वो घुटनों के बल बैठकर हर्मिट से अपने सवालों के जवाब मांगने लगे। एंड सीट्स इन अ बेड, मतलब ये होता है नीज शोइंग सीट्स, वो मतलब नीज को ऐसे बेंड करके वो अपने सवालों के जवाब मांगने लगे। दैट हैड बीन डग्ड डे बिफोर। एंड द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड फॉर द लास्ट टाइम एंड बेग यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन, मैं कितनी देर से आपसे अपने क्वेश्चंस का जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सवालों के जवाब मुझे दे ही नहीं रहे हो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आप उन आंसर्स को जानते हो या नहीं जानते हो, प्लीज़ मुझे बता तो दीजिए। तब वो जो हर्मिट थे उन्होंने कहा क्वेश्चंस जो आप मुझसे जो क्वेश्चंस जानना चाह रहे हो, जिन प्रश्नों को जानना चाह रहे हो, जो क्वेश्चंस तुम मुझसे कर रहे हो, उन सवालों के जवाब राजन तुम खुद ही जानते हो। राजा साहब, आप जिन सवालों के जवाब मुझसे खोज रहे हैं वो खुद सवाल आपके अंदर छुपे हैं, वो खुद जवाब आपके अंदर छुपे हैं। जो प्रश्न के उत्तर आप मुझसे जानने के लिए उत्सुक हो वो सारे जवाब आपको खुद ब खुद पता हैं। You have already been answered, said the hermit. Hermit ने कहा, still bending down to the ground and looking up the king, he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तब राजा ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप हर्मिट, मैं अपने सवालों के जवाब अगर जानता तो इतनी दूर आपको खोजता हुआ क्यों आता। मैं अपने सवालों के जवाब आपसे चाहता हूँ, क्योंकि हर्मिट मुझे नहीं पता मेरे सवालों के जवाब क्या हैं। प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए और मेरा मजाक, मेरा मखौल बनाना बंद कीजिए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपको नहीं पता कि उत्तर क्या है? ऐसा हर्मिट ने बोला। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने मेरी उस वीकनेस को देखा और आपका दिल भरा नहीं और आपके अंदर ऐसी कृतज्ञता आई नहीं, आप इतना मेल्ट हो गए थे मेरी मेहनत को देखकर कि आपने मेरे हाथ से उस फावड़े को, उस पैड को छीन लिया और मेरे बदले आप मेहनत करने लगे। देन फिर आपने एक व्यक्ति को देखा जो आपको अटैक करने आ रहा था, जो आपको मारने आ रहा था, लेकिन आपने उस व्यक्ति को जीवन दान दे दिया। देन दैट मैन वुड अटैक यू एंड यू वुड हैव टू विश यू टू स्टेड विथ मी। एंड सो द मोस्ट, आपने सारे सवालों को जो जवाब आप मांगने आए थे उनको छोड़कर आप मेरे साथ उस व्यक्ति की देखभाल में लग गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द पट, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आपने डिगिंग चालू किया था, खोदना चालू किया था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था आपके लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तब आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट मैन था। आप यही तो जानना चाहते हो ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन सा होता है किसके लिए। तो देखिए, कल जब मैं काम कर रहा था तो कल के समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम बन गया था मेरे हाथ से फावड़ा छिनाकर उस ज़मीन को खोदना। That was the very important work for you, and that was the important, and I was the important person for you in that time, और मैं उस समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बन गया था। उसके बाद जैसे ही दिन गुजरा, उसके बाद आपने देखा कि एक व्यक्ति और आ रहा है जो घायल है, फिर आपने उसकी सेवा की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपके लिए था वो कल ये था कि आपने उसकी सेवा की। तो तीनों सवालों के जवाब तो आपको मिल गए। इसलिए व्यक्ति को हर घड़ी हर पल खुद ही आभास हो जाता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा व्यक्ति ज़रूरी है और कौन सा काम उसे किस समय करना चाहिए। Now, because if you had to rest with a wounds man, and he would have to die without having the made peace with you, वो मर जाता अगर आप उसकी सहायता ना करते राजा। So he was the most important man, इसलिए वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था उस समय का। आप सारे सवालों के जवाबों को खोजने के लिए जो आए थे, उन सवालों के जवाबों को तो आप भूलकर उस व्यक्ति की जान बचाने में लग गए।
मतलब आपने खुद ही तय कर लिया कि सवालों के जवाब पाने से ज़्यादा उस व्यक्ति को जीवन दान देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन फॉर यू इन दैट टाइम, इसलिए वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी था। एंड वॉट यू डिड हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस समय जो आपने काम किया वो काम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर, अब याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. It is an important time because it is only time we have any power to act. हम किसी भी काम को करें, there is a only one time. वो एक समय होता है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिस समय व्यक्ति को आभास होता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी काम है करने के लिए, और अगर वो उसे सही समय कर लेता है तो उसे सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ अ पर्सन, सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन वो होता है विथ आर अ पर्टिकुलर मोमेंट, जो पल किसी पल मिल जाता है और आपके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आपका भी कर्तव्य होता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दें. फॉर नो वंस नोन वॉट विल हैपन इन अ फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हमें फ्यूचर में कौन कौन व्यक्ति मिलेंगे ये भी कोई नहीं जानता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड, एंड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन पर्पस अलोन, इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले से ही नहीं पता होता कि वो कौन सा काम करने जा रहा है, कौन सा इम्पॉर्टेंट पर्सन उसके लिए है, या कौन सा काम शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है. ये तीनों सवालों के जवाब तो आपको जीवन में हर पल ही मिलते हैं, क्योंकि हर पल आपका नया है. इसलिए आपके इन 3 सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता. इनफैक्ट सारे सवालों के जवाब आपको जीवन में ही खुद ब खुद मिल जाएंगे. जब आपका समय बीतेगा, आप लाइफ में आगे टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको अपने आप ही स्वतः ही पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन सा काम किस समय करना, कौन सा समय आपके लिए आवश्यक है. तो ये जो क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस चैप्टर, ये फिनिश्ड हो गया है. अब इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये जो एक्सरसाइजेज है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगी और PDF भेजूँगी, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट करने होंगे. ठीक है. उसके बाद ऑनलाइन सेशन होगा जो लास्ट में सैटरडे वाले दिन होगा. उस दिन मैं सारी PDF के जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी. नाउ गुड मॉर्निंग वंस अगेन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.